Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. Today we are starting the second chapter of Science Book 8, which is Nervous System. Nervous system is one of the organ systems of the human body. You must have studied other organ systems in your class 6 and 7, including the digestive system, circulatory system, respiratory system, lymphatic system or immune system, etc. There are so many organ systems of the human body. So today's topic is the human nervous system. Nervous system. What is nervous system? Nervous word is an adjective and nerve is a noun. So nervous is from nerve, which means the system which has something to do with the nerves, which involves our nerves. So we'll study what are nerves and what are their functions. So there's a diagram in front of you, rather two diagrams. First, look at the diagram on your right. There are two types of nervous systems. One is central nervous system and the other is peripheral nervous system. Look at the diagram of the person. The central nervous system includes your brain and spinal cord, and peripheral nervous system, all other body parts are having peripheral nervous system. The diagram shows the nerves in your arm and in your leg and in your spines. So there are two parts of your nervous system. One is central nervous system, is also called CNS, and other is peripheral nervous system, which is PNS. So let's start understanding them. First of all, why do we need a nervous system? What is the need of a nervous system in a human body or in a body of any animal for that matter? The nervous system, dear teachers and students, is like a postal department, and its function is to communicate. In our body, the function of the nervous system is to communicate between different parts of the body, to coordinate the functions of all the functions which our body performs. So that is the routine function of our nervous system. All the time, our brain is working, and currently, if you look at me, I am moving my hands and I am moving my tongue while speaking. तो ये क्या हो रहा है? एक्चुअली ये कोऑर्डिनेशन हो रही है. ये देखो, मेरी बातों में और मेरे हाथों में और मेरे दिमाग में ये कोऑर्डिनेशन है. ये फंक्शन मेरी बॉडी जो कर रही है, इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है ये सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है. एक्चुअली ब्रेन मैसेज भेज रहा है टंग को भी, और ब्रेन मैसेज भेज रहा है मेरे हैंड्स को भी कि आप इस तरह हिलो, इस तरह समझाने के लिए, मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस. और टंग को भी ब्रेन से मैसेज आ रहे हैं. तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, ये समझिए कि मास्टर कम्युनिकेटर है. जो कम्युनिकेट करता है वो, इसलिए इसको मास्टर कम्युनिकेटर भी कहते हैं.
और ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि ये जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी करती है, परफॉर्म करती है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनका आपस में राबता कराता है। ठीक है। तो दूसरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है, एक तो ये है ना कि रूटीन रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये रूटीन में, अब जैसे मैं रूटीन में कर रहा हूं कि मेरा ब्रेन जो है वो एक चीज कन्वे कर रहा है मेरे हैंड्स को, मेरे मसल्स को, और मेरी टंग को, जुबान को, और उससे मैं जो फंक्शन कर रहा हूँ वो ब्रेन और ये बॉडी पार्ट्स, ये इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो ये रूटीन की बातें हर वक्त हम करते रहते हैं, तो रूटीन में ये हमारा नर्वस सिस्टम काम करता रहता है। एक दूसरा फंक्शन इसका है रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम। फौरी तौर पे जब रिस्पॉन्स करना होता है तो ये आपकी इन्वायरमेंट जो है जिसमें आप रहते हैं, उससे अगर कोई इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर आपके नर्वस सिस्टम को रिसीव होती है, उसको प्रोसेस करना और फौरी तौर पे उसका रिस्पॉन्स देना, वो भी इसका काम है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो इमीडिएटली मेरे सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाए, तो दैट विल बी अ क्विक रिस्पॉन्स। वो एक जो स्नेक है, जब मेरी आईज ने उसको देखा है तो वो एक मेरी आईज से मैसेज ब्रेन को गया है, ब्रेन को बताया है मेरी आईज ने कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप है, और ब्रेन ने उस मैसेज को प्रोसेस किया है, इंटरप्रेट किया है, फिर फैसला किया है ब्रेन ने, और वो फैसला फिर उसने वापस कम्युनिकेट किया है, वापस सेंड किया है उस फैसले को टू एग्जीक्यूट इट, इसको अमल दरामद किए जाए। वो फैसला क्या है? उसने वो फैसला मेरे मसल्स को, मेरे हैंड्स को, ये उसने फैसला भेजा है थ्रू नर्व्स कि आप एक डंडा उठाओ और इसको मारो। ये क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये समटाइम्स इसकी ब्रेन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, टाइम ज्यादा लगता है, सांप बिल्कुल सामने है। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी स्पाइनल कार्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है ना जो आपने देखे थे, एक ब्रेन था और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड थी जो स्पाइनल कॉलम के अंदर होती है। तो ये जब क्विक रिस्पॉन्स होता है तो वो आपका जो जो मैसेज है वो समटाइम्स डायरेक्टली जो आपकी स्पाइनल कार्ड है वहां पे डिसीजन हो जाता है। स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड है वो ब्रेन की कंटिन्यूटी है, याद रखना। ये ब्रेन स्टेम से नीचे स्पाइनल कॉलम के अंदर चलती है, वो ब्रेन की ही कंटिन्यूटी है, ब्रेन टूटता नहीं है, वो यहां से नीचे कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉलम के अंदर, वो स्पाइनल कार्ड है। तो वहीं पे फैसला हो जाता है और वहीं से फैसला वापस आपको आ जाता है कि फौरन इस सांप को मारो, ठीक है। तो वो क्विक रिस्पॉन्स, वो ये दो 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 फंक्शन हो गए आपके नर्वस सिस्टम के। एक है रूटीन रिस्पॉन्स जो इस वक्त मैं कर रहा हूं रूटीन में। आई मीन ये जो देखे, मेरी आंखें झपक रही हैं, मेरे हाथ खुल रहे हैं, मेरी जुबान बोल रही है, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये एक रूटीन के वॉलंटरीली जो मैं काम कर रहा हूं, ये रूटीन के रिस्पॉन्सेज हैं। और एक वो मैंने बताया, या फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं तो मेरा पाँव जो है फौरी तौर पे आई स्टेप ऑन इन अ पिन, अ शार्प पिन, ठीक है, विच प्रिक्स माई टो। जब वो मेरी टो को प्रिक करेगी तो मुझे पेन होगा, और फौरन मैं अपना हैंड जो है वो वहां पे लेके जाऊंगा अपने उस टो के ऊपर जहां पे पिन चुभी है। तो ये किसने ऑर्डर दिया है मेरे हाथ को कि तुम उधर जाओ? वो जो वो जो पिन ने प्रिक किया है मेरे टो को, वहां से एक मैसेज आया है जो इस हमारी बॉडी में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां से वो मैसेज आता हुआ स्पाइनल कार्ड से होता हुआ ब्रेन में गया है, या स्पाइनल कार्ड से ही उसका डिसीजन अगर होना है
जो क्विक रिस्पॉन्स, ये वाला क्विक रिस्पॉन्स होगा, ये पिन जो भी है, तो वहां पे फैसला हुआ है वापस के पिन अगर तो है अभी भी टो के अंदर, तो उसको बाहर निकालो और इसको क्या मसाज करो या इसके ऊपर को पट्टी करो। फैसला हो गया, वो फैसला आपके आपके हाथ को जो बताया गया वो ब्रेन की तरफ से या स्पाइनल कार्ड की तरफ से मैसेज आया है वापस कि ये करो। यानी ये इस तरह का सिस्टम है कि पहले मैसेज गया है आपके पांव से आपकी स्पाइनल कार्ड में या ब्रेन में, और वहां से वापस मैसेज आया है आपके हाथ को कि चलो वो पिन निकालो या वो ब्लीडिंग जो हो रही है उसको बंद करो, उसके ऊपर आप बैंडेज बांधो। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम जो है इस तरीके से आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं सारे उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपका पांव जख्मी हो जाता है तो आप फौरन अपना हाथ जो है ना वो पांव पर लेके जाते हैं, तो ये आपको जो डायरेक्शन आपके हैंड को जो आती है वो डायरेक्शन आपके ब्रेन से आती है, या समटाइम्स जब क्विक रिस्पॉन्स होता है तो जिसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन, फौरी तौर पे जब एक्शन करना होता है तो वो फिर फैसला स्पाइनल कार्ड में ही हो जाता है, वहीं से वापस डायरेक्शन आपके हाथ को मिल जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि इसके और क्या फंक्शन है जो जो यस ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, बेशक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। मैंने बताया ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो चीजें, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कार्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बाकी सारी बॉडी में जो नर्व्स स्प्रेड की हुई हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ये सारा जो है जिन सेल्स से मिलके ये बना है, ये सिस्टम, ये बड़े स्पेशलाइज्ड सेल हैं और इन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो नर्व सेल और न्यूरॉन्स हैं इनकी ये मैंने आगे नर्व सेल बनाया है, तो जो यहाँ पे यस ये है जी नर्व सेल। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक सेल है, जस्ट वन सेल। ठीक, अब ये जो न्यूरॉन है या इसको नर्व सेल भी कहते हैं, इसके पार्ट्स आप देखें। इसके पार्ट्स में सबसे पहले जो ट्री लाइक ब्रांचेस हैं, ये जो ट्री लाइक ब्रांचेस हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है डेंड्राइट, इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट। दे आर ट्री लाइक ब्रांचेस, दे आर बेसिकली ईयर्स ऑफ द न्यूरॉन। ये जो सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल, ये इसके कान है, यानी यहां से ये मैसेज रिसीव करता है। जब मैसेज कोई आता है तो रिसीव डेंड्राइट से होता है। ये जो ब्रांचेस बनी हुई है ये सारे डेंड्राइट्स हैं एंड दे आर ईयर्स ऑफ द न्यूरॉन और नर्व सेल। उसके बाद ये सेंटर में देखें आप, न्यूक्लियस है और फिर ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वो जो होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पोर्शन है ना, ये वाला सारा पोर्शन जिसमें डेंड्राइट्स, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस और दूसरे कुछ पार्ट्स, ये वाला पोर्शन दिस अप टू हियर, ये इसको सेल बॉडी कहते हैं या सोमा भी कहते हैं। इसका नाम
या सेल बॉडी या सोमा। अब सेल बॉडी में डेंड्राइट्स भी हैं, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और ऑर्गेनेल्स भी हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं क्या है। यहां से आगे अगर आप चलें तो ये एक यहां पे प्रोजेक्शन बनी हुई है जहां से ये आगे को एक्सटेंड होता है न्यूरॉन जो है। ये जो ये एक लॉन्ग केबल है यहां से यहां तक, थ्रेड, इसको कहते हैं एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। ये पार्ट जो है ये एक्सॉन है। अच्छा, ये जो एक्सॉन है इसको अगर आप गौर से देखें, ये देखें और ये देखें और ये देखें, इसके सेगमेंट्स हैं। एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है। ठीक है, और दरमियान में ये नोड्स बने हुए हैं। ये जो हर सेगमेंट जो है, ये एक सेगमेंट है, इसके पहले भी नोड है, बाद में भी नोड है, और ये सेगमेंट है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। अच्छा, ये दरमियान वाला जो सेगमेंट है एक्सॉन का, इसको हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड। और इसको हम नोड कहते हैं। अच्छा, और इसको, इस नोड को नोड ऑफ रेनवियर भी कहते हैं। रेनवियर एक्चुअली एक फिजिशियन था और हिस्टोलॉजिस्ट था जिसने इसको बेसिकली स्टडी किया था, डिस्कवर किया था कि उसने कहा था कि ये जो एक्सॉन है उसके ऊपर ये जो, इसको कहते हैं माइलन शीथ, ये जो अंदर एक्सॉन चल रहा है और उसके ऊपर एक लेयर है, उसको कहते हैं माइलन शीथ। ये माइलन शीथ है इसके ऊपर। ये मैं बाद में चल के बताऊंगा आपको माइलन शीथ क्या होती है। मगर ये माइलन शीथ जो है ये बिल्कुल कंटिन्यूसली ऊपर नहीं चल रही। ये माइलन शीथ इस सेगमेंट के ऊपर है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर इस सेगमेंट के ऊपर है, फिर यहाँ पे नहीं है, इस सेगमेंट के ऊपर है। यानी ये जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है ये माइलन शीथ है। इसके अंदर जो ये ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये एक्सॉन है। उसके ऊपर माइलन शीथ रैप हुई है इन सेगमेंट्स में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनोड। और इसको नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे। ये रेनवियर जो था वो एक फ्रेंच, मैंने बताया ना आपको, फिजिशियन भी था और हिस्टोलॉजिस्ट भी था। हिस्टोलॉजी को स्टडी करता था, तो उसने ये डिस्कवर किया, इसलिए उसको ऑनर देने के लिए इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कह देते हैं। उसका पूरा नाम था लुई एंटोइन रेनवियर। अच्छा, 1878 में उसने वैसे ये डिस्कवर किया था। तो अच्छा, अब जब ये एक्सॉन जहां पे खत्म होता है, एक्चुअली ये खत्म नहीं होता, ये एक्सॉन की ही एक्सटेंशन है। ये आगे जो है ना, इनको लिखा हुआ है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। ये देखें, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। ये जो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन हैं, एक्चुअली यहां पे देखें, यहां पे मैसेज रिसीव हुआ, डेंड्राइट जो ईयर थे, ठीक है, इन्होंने रिसीव किया मैसेज को, और वो मैसेज आगे कन्वे किसने किया? एक्सॉन ने। एक्सॉन में से वो मैसेज गया, और ये चूंकि जो टर्मिनल एंड्स हैं एक्सॉन के, ये एक्सॉन का ही पार्ट है, तो यहां पे जब मैसेज पहुंचता तो ये जो एंड, बिल्कुल एंड होते हैं, ये टर्मिनल एंड्स जहां पे एंड होते हैं, यहां पे एक, हर एंड के ऊपर एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। साइनेप्टिक नॉब, आगे मैं आपको बताता हूं उसके। अच्छा, वो साइनेप्टिक नॉब जो है, उस साइनेप्टिक नॉब के अंदर बहुत माइक्रोस्कोपिक सैक्स होते हैं जिनको वेसिकल्स कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। वो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं
उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये सारी चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। ये सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखते जाएं कि मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करते हैं किससे? जो इससे पहला न्यूरॉन था उसके ये वाले जो टर्मिनल एंड्स थे वो यहां पे इसके पास थे, वहां से मैसेज इसने रिसीव किया। टर्मिनल एंड इससे प्रीवियस जो न्यूरॉन है उससे इसने मैसेज रिसीव किया टर्मिनल एंड्स के जरिए। फिर वो मैसेज यहां पे चला गया एक्सॉन में, एक्सॉन में चला गया तो वो टर्मिनल एंड्स में पहुंच गया। टर्मिनल एंड्स जहां पे बिल्कुल एंड होते हैं, ये यहां पे मैं फिंगर रख रहा हूं, ये जहां पे फिंगर रख रहा हूं, ये यहां पे राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। अब साइनेप्टिक नॉब्स जो हैं उनके अंदर फिर राउंड शेप्ड वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सैक्स थैलियां होती हैं जिनको साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये है सिर्फ स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई है एक न्यूरॉन जो है उसकी, मगर ये इसमें सिर्फ यही कुछ नहीं है जो आपको नजर आ रहा है, इसमें बेशुमार चीजें हैं। जैसे कि ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर ये माइलन शीथ से नीचे और एक्सॉन के ऊपर और माइलन शीथ से नीचे बहुत थिन लेयर होती हैं, उनको हम डिफरेंट उनके नेम्स हैं। एक पहली होती है एंडोन्यूरियम, एक लेयर होती है, ये मैं एक्सॉन की बात कर रहा हूं, एक्सॉन के ऊपर एक पेरिन्यूरियम और एक एपिन्यूरियम, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। और फिर ये माइलन शीथ होती है। और अच्छा, ये माइलिनेटेड एक्सॉन इसको कहते हैं। और कुछ एक्सॉन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये माइलन शीथ नहीं होती, वो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये आपको समझ आ गई है स्ट्रक्चर, मगर इसमें सिर्फ यही कुछ नहीं है। ये देखें, इसके ये जो सेल था इसमें सेल मेम्ब्रेन भी थी, जिस तरह हर सेल की होती है। ये बाहर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द जो एक लेयर है, जो एक थिन वॉल है पूरे सेल के गिर्द, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो इसमें भी है, ठीक है, हर एनिमल सेल में होती है, चुनाचे वो इसमें भी है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ सेल बॉडी में ही नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही नहीं होता, एक्सॉन के अंदर भी होता है और डेंड्राइट्स में भी होता है। यानी साइटोप्लाज्म 3 जगह पे होता है, डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में जहां पे न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द, और एक्सॉन के अंदर, सारे एक्सॉन के अंदर अप टू टर्मिनल एंड्स ये साइटोप्लाज्म होता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, और फिर जो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, AXO, एक्सोप्लाज्म, ठीक है जी। अच्छा, और एक्सोप्लाज्म के अंदर यानी जो एक्सॉन है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें, साइटोस्केलेटल फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होती हैं जो मैन्युफैक्चर तो सेल बॉडी में होती हैं मगर ट्रांसपोर्ट होके आगे चली जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होके
तो एक्सॉन में चली जाती हैं, तो वो भी होती है। वहां पे एंजाइम्स होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स होते हैं। ये वेसिकल्स मैंने आपको बताया है पहले, वो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स की मैंने बात की, जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अच्छा, हाउएवर राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको इस सेल में, न्यूरॉन में, उसका नाम होता है निसल बॉडीज। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, जब इनके फंक्शन के मैसेज कैसे ट्रेवल करता है, तो फिर मैं ये समझाऊंगा कि निसल बॉडीज का क्या फंक्शन है। ठीक है, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus आर जनरली एब्सेंट फ्रॉम द एक्सॉन। एक्सॉन में ये तीन चीजें जनरली नहीं होती। ठीक है, most proteins needed by the axon are made in the cell body and transported along the axon। ये मैंने बता दिया आपको। फिर इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, साइटोस्केलेटन यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो जो हमने पहले ऊपर देखा। However, these organelles are mainly concentrated in the cell body soma। कुछ ऑर्गेनेल्स ऊपर मैंने बता दिए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन बॉडीज वगैरह, वो उसमें एक्सॉन में होती हैं, और बाकी सारे जो होते हैं वो सेल बॉडी के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें होते हैं। और सेल बॉडी को आपको पता है सोमा भी कहते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन है, ये यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, ये डेंड्राइट्स, इसको मैंने ईयर्स लिखा है, और इनका जॉब क्या होता है? दीज आर टाइनी ब्रांचिंग फिंगर्स दैट लुक लाइक ट्री रूट्स या ट्री ब्रांचेस। देयर जॉब इज टू रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन। दे आर द ईयर्स ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी में मैंने आपको दिखाई है, ब्रेन है जो न्यूक्लियस है, सेल बॉडी एक्चुअली ब्रेन है। डेंड्राइट्स क्या है? ईयर्स हैं, जहां से न्यूरॉन सुनता है, मैसेज रिसीव करता है। और सेल बॉडी क्या है? वो ब्रेन है इस सेल का, न्यूरॉन का ब्रेन है। ठीक है, उसका क्या काम है? दिस इज द राउंड फैट पार्ट इन द मिडल। ये बड़ा फैट पार्ट होता है, देखा है आपने सेल बॉडी। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, द कंट्रोल रूम, न्यूक्लियस कंट्रोल रूम है। दिस कीप्स द न्यूरॉन अलाइव एंड मेक्स श्योर इट हैज एनफ एनर्जी टू सेंड द मैसेज। ये जो सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन को जिंदा रखने में इसी का रोल है, यही इसको, न्यूरॉन को जिंदा रखती है। और ये इसमें ये इंश्योर करती है सेल बॉडी के न्यूरॉन में इतनी एनर्जी हो कि जो मैसेज डेंड्राइट्स ने रिसीव किया है, वो मैसेज इसमें से गुजर के, एक्सॉन में से गुजर के, टर्मिनल एंड में से गुजर के अगला जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उस तक पहुंच जाए। इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये भी ये सेल बॉडी का ही काम है, ये इंश्योर करना, ये यकीनी बनाना। अगला पार्ट एक्सॉन है, जो कि मैंने आपको बताया था एक वायर है, एक केबल की तरह। ठीक है, तो दिस इज अ लॉन्ग सिंगल टेल लाइक वायर दैट एक्सटेंड्स आउट। ये सेल बॉडी से बाहर निकल के एक्सटेंड करती है। इट्स जॉब इज टू कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। वो मैसेज जो सेल बॉडी में आया डेंड्राइट से, उसको आगे लेके जाना इसका काम है। इट्स लाइक द लॉन्ग हाईवे फॉर द सिग्नल। ये जैसे एक बड़ी हाईवे होती है, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है ना, तो ये जो सिग्नल पीछे से, यानी मैसेज, सिग्नल क्या है यहाँ पे? मैसेज। जो मैसेज पीछे से आ रहा है, उसके लिए ये हाईवे का काम करता है एक्सॉन, वहां से ये सिग्नल ट्रेवल करता है। सम एक्सॉन्स आर रियली शॉर्ट बट सम कैन बी एज लॉन्ग एज योर एंटायर लेग। ये एक आपका न्यूरॉन है, उसकी पता कितनी लेंथ है? या आपकी यहां से स्पाइन से निकलता है और आपके फुट तक जाता है। एक सेल की जो
मोर देन 3 फीट लॉन्ग, 1 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। इतना इतना लंबा भी एक सेल हो सकता है। अच्छा, इंटरनोड मैंने समझा दिया आपको कि उसके ऊपर एक्सॉन का वो सेगमेंट जिसके ऊपर माइलन रैप हुई होती है, माइलन ने कवर किया होता, अ माइलन कवर्ड सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन, नोड ऑफ रेनवियर द स्मॉल अनकवर्ड गैप बिटवीन टू इंटरनोड्स, दो इंटरनोड्स के दरमियान जो गैप होता है, ठीक है, जो माइलन से कवर नहीं होता, उसको नोड कहते हैं या नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। मैंने समझाया आपको। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन भी समझा दिए, एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं उनको, टर्मिनल ब्रांचेस भी कहते हैं। तो दीज आर द ब्रांच एंड्स ऑफ द एक्सॉन। ये एक्सॉन यहां पे एंड हो जाता है, ये ब्रांचेस में एंड होता है, जिस तरह दरख्तों की ब्रांचें होती हैं, वो ब्रांचेस में जाके एंड हो जाता है, ठीक है। दे फॉर्म द फाइनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन एंड कनेक्ट विद अनदर न्यूरॉन। ये जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, ये न्यूरॉन का फाइनल पार्ट, आखिरी पार्ट है, और यहां से ये अगले न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। टर्मिनल एंड्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट होंगे, याद रखना। ये जो न्यूरॉन है, इसके जो टर्मिनल एंड्स हैं, वो इससे नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो या अगर आगे नहीं है, इन्होंने ये मैसेज किसी मसल को देना है और या किसी ग्लैंड को देना है, ठीक है, तो फिर ये डायरेक्ट वो मैसेज जो है वो बगैर किसी और न्यूरॉन से कनेक्ट हुए बगैर वो डायरेक्ट मसल को वहीं पे, वो खत्म ही, वो दैट विल बी द लास्ट न्यूरॉन, फिर उस वो मसल को मैसेज दे देगा या आपके किसी ग्लैंड को मैसेज दे देगा जो कि ये फंक्शन करने के लिए ब्रेन ने आपको डायरेक्शन दी है, ठीक है। ईच ब्रांच यूजुअली एंड्स इन ए स्वोलन टिप कॉल्ड ए साइनेप्टिक नॉब। ये मैंने आपको बताया था कि हर जो ब्रांच है टर्मिनल एंड्स की, उसके एंड पे टिप के ऊपर, ठीक है, वो टिप स्वोलन होती है, एक राउंड शेप वो स्ट्रक्चर बना होता है, तो उसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, ठीक है। तो साइनेप्टिक नॉब्स, टर्मिनल बटन्स आर एंड बल्ब्स। These are the small bulb-like swellings at the tips of the terminal branches. They contain many synaptic vesicles. They contain many synaptic vesicles. मैंने बताया था synaptic vesicles उनके अंदर होते हैं। When a nerve impulse reaches a synaptic knob, it triggers the release of neurotransmitters. अब ये जो मैसेज आया डेंड्राइट से, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में आया और इसको हम एक नाम देते हैं नर्व इंपल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स। और जब ये नर्व इंपल्स साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचती है, तो वहां पे फिर ये वाला मैसेज जो है, जो कि नर्व इंपल्स की शक्ल में मैसेज आ रहा है, ये साइनेप्टिक नॉब को मिलता है और साइनेप्टिक नॉब से आगे फिर ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में जाता है। साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं, वो साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन जो है उसके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो ये जब वहां पे नर्व इंपल्स मैसेज जब वहां पे पहुंचता है साइनेप्टिक नॉब में, तो फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल्स हैं वो वेसिकल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपको सारे बताऊंगा डिटेल के साथ। अभी तो सिर्फ हम ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मेरा इसके ऊपर, नर्वस सिस्टम की ओर, बहुत बेसिक क्लास 8 के लिए। और इसके बाद फिर आगे मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा कि किस तरीके से नर्व इंपल्स जो है प्रोपेगेट करती है न्यूरॉन में और
एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में कैसे जाती है, एंड अदर थिंग्स आल्सो. साइनेप्टिक वेसिकल्स मैंने बताया, दीज आर टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स इनसाइड द सिनेप्टिक नॉब. टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स. अब ये सैक्स, थैलियां जो हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है. जिस तरह सेल के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी तरह इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, थैली. तभी बनेगी ना वो सैक बनेगा, ठीक है. और इनके अंदर वो केमिकल्स होते हैं. दे स्टोर केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये जो केमिकल्स होते हैं ये एक्चुअली मैसेंजर्स हैं, पैगाम रसां हैं. इन्होंने पैगाम अगले न्यूरॉन तक पहुंचाना है, ठीक है. ये जो केमिकल्स हैं जो कि साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं, और इनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे एसिटिलकोलाइन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है, गाबा है. गाबा एब्रीविएशन है गैमा समथिंग, वो आगे डिटेल में मैंने बताया, फिर मैं समझा दूंगा आपको. तो ये नाम हैं उन केमिकल्स के, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो एक्चुअली मैसेंजर हैं, जिनको पैगाम पहुंचता है उससे, न्यूरॉन से, और वो पैगाम उन्होंने अब अगले न्यूरॉन को इन्होंने देना है, अब इन केमिकल्स ने. तो इसीलिए आपकी बुक में ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स. पीछे से तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, मगर यहां पे आके ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में ट्रांसफर हो गया है, ठीक है. ट्रांसफॉर्म हो गया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ये बन गया. ड्यूरिंग नर्व ट्रांसमिशन they fuse with the membrane of the synaptic knob and release neurotransmitters into the synaptic cleft. अब जब ये नर्व इम्पल्स वहां पहुंचती है, तो ये जो वेसिकल्स हैं, ये इनकी मेम्ब्रेन जो है वो साइनेप्टिक नॉब के साथ अटैच हो जाती है. फिर ये आगे से इनकी जो मेम्ब्रेन है फटती है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं अंदर से बाहर into the synaptic cleft. अब ये नया लफ्ज है synaptic cleft. synaptic cleft जो है, ये जो एक न्यूरॉन है, जब वो खत्म होता है टर्मिनल एंड्स के ऊपर और दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है आगे से, तो पहले न्यूरॉन के टर्मिनल एंड्स और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है. ये आपस में अटैच नहीं होते, याद रखना. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ फिजिकली अटैच नहीं होता. दरमियान में एक बहुत माइक्रोस्कोपिक नैनोमीटर, मैं बताऊंगा जाके आगे, 20 to 40 नैनोमीटर का गैप होता है दरमियान में. और ये जब न्यूरोट्रांसमीटर्स इधर से निकलते हैं तो ये डिफ्यूज होके अगले डेंड्राइट्स पे जाते हैं, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे डिफ्यूज होके, ठीक है ना. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होकर चले जाते हैं और मैसेज वहां पहुंचा देते हैं. ये फिजिकली टर्मिनल एंड्स और डेंड्राइट्स फिजिकली आपस में अटैच नहीं होते. वो जो गैप है दरमियान में उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक. आगे जी माइलिन शीथ. ये माइलिन शीथ जो मैंने आपको बताई थी येलो रंग की, जो उसके सेगमेंट्स के ऊपर रैप हुई थी, लिपेटी हुई थी, तो ये वो माइलन है क्या, माइलन शीथ इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैं इसको पढ़े बगैर आपको समझा देता हूं. माइलन एक्चुअली एक इसमें जो जो मैटर है माइलन, इसमें 70% 70 to 80% कहीं लिखा हुआ है जो है वो फैट्स हैं, और 20 to 30% प्रोटीन है. और वो फैट्स की वजह से इसका रंग वाइट होता है, फैट्स की वजह से. यहां पे तो उसने येलो सा शो किया हुआ था ना, सिर्फ प्रोमिनेंट करने के लिए वैसे. और जो वाइट मैटर आपके ब्रेन में और आपकी स्पाइन में होता है वो इसकी वजह से होता है, ये माइलन की वजह से, क्योंकि माइलन में 70 to 80% फैट्स हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं. तो जो एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर आपके ब्रेन में और स्पाइन में. तो ये जो व्हाइट मैटर है वो इसकी वजह से होता है, माइलन की वजह से. ये उसके इर्द गिर्द रैप होती है एक्सॉन के गिर्द,
मगर ये कंटिन्यूअसली रैप नहीं रहती, एक सेगमेंट को रैप करती है, आगे फिर छोटा सा पोर्शन नोड जो है उसको छोड़ देती है, वो अनकवर्ड छोड़ देती है, फिर आगे रैप होती है, फिर आगे रैप होती है। इस तरीके से ये माइलन शीथ, आपको पता है कवर को कहते हैं कवरिंग, माइलन की कवरिंग जो है ना वो उसके ऊपर चढ़ी होती है। इसके फिर फंक्शन जो है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसके फंक्शन क्या है। ठीक है जी, ये मैंने बताया है कि 7 to 80% इसमें फैट्स होते हैं और 20 to 30% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, और वाइट मैटर जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में इसकी वजह से होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो यस, दिस वाज द लास्ट as far as this introductory lecture on nervous system was concerned। ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद जो मेरे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे, आई ट्राई टू फिनिश दिस नर्वस सिस्टम इन मे बी अनदर 6-7 लेक्चर्स। तो उनमें फिर मैं डिटेल के साथ इनके फंक्शंस और फिर न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कैसे प्रोपोगेट करती है और उनके आगे सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।